Hello everyone, how are you? I hope you are staying home and staying safe. Myself Ambuj Trivedi and you are welcome to our YouTube channel Software Computer Education. Today's topic is data transmission. So first you should know to whom this video is useful. This is very beneficial to the students of computer science who are studying in class 10th or 12th. So today's we will discuss about data transmission, means what is a data transmission and what is a speed of data transmission and what is a mode of data transmission and how many types of data transmission, किन चैनल्स के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कौन कौन से मोड हम डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। सो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव टू स्क्रीन टू डिस्कस टुडेज टॉपिक विद लॉट ऑफ कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डेटा ट्रांसमिशन? डेटा ट्रांसमिशन इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजिटल और एनालॉग डेटा ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम टू वन और मोर डिवाइसेस. It allows the transmission and communication of devices in different environments, point to point, point to multi-point और multi-point to multi-point. मीन्स जब हम डेटा को एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ द डेटा ट्रांसमिशन. तो ये भी हो सकता है कि हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर करें या एक पॉइंट से अन्य कई पॉइंट्स पर हम कर सकते हैं या कई पॉइंट्स से कई पॉइंट को हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसे कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन. आगे अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की. सो डेटा ट्रांसमिशन कैन आइदर बी एनालॉग और डिजिटल. एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल, बट इज़ मोस्टली earmarked for sending and receiving digital data. As such, data transmission is also referred to as digital transmission or digital communications. It works when a device aims to transmit a data object or file to one or multiple recipients' devices. The digital data comes from the source device in the form of digital bit streams. These data streams are positioned over a communication medium for transmission to the destination device. An outward signal can either be baseband or passband. You must do it in the night time. Now let's talk about data transmission lines. Data transmission lines are used to transmit data from one terminal to another. Means ऐसी लाइंस या ऐसे चैनल्स जिनके माध्यम से हम डेटा को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ट्रांसफ़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if 6 terminals are transmitting data, the 6 transmission lines are required. The quality of transmission depends upon transmission speed. The transmission line with higher speed is higher in quality. So here is given data transmission speed, means data handling capacity of a communication system which is called transmission line is known as its bandwidth. तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड टेक्निकल टर्म्स आया है, टर्मिनोलॉजी बैंडविथ. बैंडविथ होती क्या है? जब हम डेटा को एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा सबसे पहले पीसेज में ब्रेक होता है और वो पीसेज कई सारे पीसेज मिलकर एक पैकेट
तैयार होता है और उस पैकेट में डेटा पैकेट वाइज ट्रांसफ़र होता है, और उस पैकेट के बीच की जो गैप होती है दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ. So data transmission speed is measured in bits per second or bandwidth or band. Bandwidth is also known as baud rate. इसे baud rate भी बोलते हैं, मीन्स baud rate जो bandwidth होती है इसे baud rate के नाम से भी हम कभी कभी जानते हैं. Other units to measure bandwidth are kbps, mbps, gbps, etc. So data transmission lines are classified on the basis of bandwidth. यानी जो डेटा ट्रांसमिशन लाइन्स हैं ये बैंडविथ के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड की गई हैं, मीन्स कैटेगराइज की गई हैं. सो आगे हम इन्हें देखते हैं. दे आर फॉलोइंग अहेड. सो फर्स्ट इज नेरो बैंड. नेरो बैंड यू कैन सी हेयर. नेरो बैंड हैज़ रिक्वायर्ड पावर एंड frequency. Means a narrow band transmission refers to a data transfer that has a slow or small transfer rate. When referring to wireless transmission, a narrow band signal is one that covers a small area. And next is voice band. Second transmission lines is voice band. So you can see here also voice band transmission. So this refers to the transmission of voice information over a relatively narrow band of frequencies called the voice spectrum, about 0 to 500 Hz, for which telephone networks have been designed. Your dial-up 56 kbps modem is an example of a voice band modem. For the sake of the scope of this chapter, so voice band technologies discussed include dial-up 56 kbps analog modems, modem doubling, and ISDN. You must have heard it. ISDN, integrated service digital network. Broadband technologies will include cable, DSL, and satellite internet access. And next is broadband. This is the popular transmission line, broadband. So broadband has baseband and broadband. So you know this is the buzzword you have been hearing a lot about. You might know, you might not know what it is, but you have probably heard of it. Broadband covers a wider band of frequencies than voice band. These lines are used to very large volume of data. Their data handling capacity is highest. Means अगर डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात हम करें तो ब्रॉडबैंड के माध्यम से इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है. सो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन की. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन. सो आई होप यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट डेटा ट्रांसमिशन एंड इट्स स्पीड. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, then type of transmission are of mainly two types. So let's go to see that. First is parallel transmission. Parallel transmission means जितनी भी बिट का पैकेट हम ट्रांसफ़र करेंगे वो एक साथ ट्रांसमिट होके सेंडर से और रिसीवर तक पहुँचेंगी. आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं जितनी भी बिट मीन्स 8 बिट यहाँ से ट्रांसफ़र की जा रही हैं और रिसीवर तक 8 बिट एक साथ एट अ टाइम डिलीवर्ड टू द रिसीवर. सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन एंड several bits are transmitted together simultaneously within one clock pulse rate. It transmits quickly as it utilizes several input and output lines for sending the data. Parallel transmission use a 25 pin port with 17 signal lines and 8 ground lines. The 17 signal lines are divided as follow. You can see here 4 lines initiate handshaking, 5 lines communicate and notify errors, 8 lines transfer data. सो आगे हम बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की. सीरियल ट्रांसमिशन ये इसका
सेकेंड ट्रांसमिशन है सीरियल ट्रांसमिशन। एंड सीरियल ट्रांसमिशन के पास स्टार्ट बिट भी होती है और स्टॉप बिट, मीन्स जहाँ से डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है। सो इट हैज़ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, रिसीविंग साइड एंड transmitting side. So data is sent bit by bit from one computer to another in two directions. Each bit has a clock pulse rate. 8 bits are transmitted at a time with a start and stop bit known as a parity bit, which is 0 and 1 respectively. Data cables are used when transmitting data across a longer distance. The data cable has D-shaped 9-pin cable that connects the data in series. अब देखिए हम पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन को यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, किन किन चीज़ों में डिफरेंस है, ये क्यों दोनों एक दूसरे से ट्रांसमिशन अलग है। सो कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनीशन, अगर हम दोनों की डेफिनीशन की बात करें, सो सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा फ्लोज इन 2 डायरेक्शंस बिट बाय बिट, एंड पैरेलल ट्रांसमिशन डेटा फ्लोज इन मल्टीपल डायरेक्शंस इन 8 बिट फॉर्म। और अगर हम कास्ट की बात करें, सो सीरियल ट्रांसमिशन कॉस्ट इज़ इकोनॉमिकल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। And if I talk about number of bits transferred per clock pulse, so number of bits transfer per clock pulse, serial transmission की जो pulse rate होती है 1 bit and parallel transmission की 8 bits और 1 byte। और स्पीड की बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन की स्लो स्पीड होती है और पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा फास्ट मोड में ट्रांसमिट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन। सो यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब देखिए सीरियल ट्रांसमिशन में अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और पैरेलल ट्रांसमिशन में यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन की हमें इसमें नीड होगी। और एग्जांपल की बात करें, सो सीरियल ट्रांसमिशन जैसे किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करते हैं, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। एंड जैसे कंप्यूटर से हम प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट इज़ द पैरेलल ट्रांसमिशन। सो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की, टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सो सीरियल ट्रांसमिशन हैज़ 2 पार्ट, मीन्स इसको हम 2 तरह से ट्रांसमिट करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन को। एक तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, सेकंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, अब इसमें देखिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है डेटा का, वो एक डायरेक्शंस में कंटिन्यूअस एट अ स्ट्रेच सेंडर टू रिसीवर चलता रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करें, पहले सिंक्रोनस को समझ लेंगे। Synchronous transmission is a data transfer method which is characterized by a continuous stream of data in the form of signals, which are accompanied by regular timing signals, which are generated by some external clocking mechanism mean to ensure that both the sender and receiver are synchronized with each other. सो लेट्स टॉक अबाउट असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो ये रहता तो सेम है, बट इसके जो पैकेट्स होते हैं उनके बीच में, ट्रांसमिटिंग पैकेट्स जो होते हैं उनके बीच में गैप होता है, और हर एक पैकेट्स की स्टार्ट बिट होती है और स्टॉप बिट होती है। सो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सेंडर से पैकेट्स जो सेंड किए जा रहे हैं रिसीवर को, उनके बीच में गैप होता है, गैप्स बिटवीन द डेटा यूनिट्स। Asynchronous transmission is a mode of serial transmission for modems and other telecommunication devices.
in which the data is transmitted as a continuous stream of bytes separated by start and stop bits. अब देखिए ये हर एक पैकेट स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट से सेपरेट होता है, मीन्स हर एक पैकेट्स के बीच में गैप होता है। तो डेटा इसमें यूनाइटेड होकर सेंडर से रिसीवर की ओर जाता है। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ एन एनालॉग ट्रांसमिशन। आपने एनालॉग का नाम जरूर सुना होगा, डिजिटल का नाम सुना होगा, डिजिटल इज़ अ पॉपुलर वर्ड। सो हम यहाँ पर पहले एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन कैसे होता है? एनालॉग ट्रांसमिशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल दैट वेरी स्मूथली विद टाइम एज शोन इन द डायग्राम एंड डायलॉग. An analog signal can take on any value in a specified range of values. A simple example is alternating current AC. तो आपने देखा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक एनालॉग ट्रांसमिशन है which continually varies between about 110 volts and 110 volts plus 110 volts and minus 110 volts in a sine wave fashion 60 times per second. So you can see here the voltage and time, कैसे कैसे डेटा एनालॉग ट्रांसमिट होता है वेव की फॉर्म में। और अगर हम डिजिटल की बात करें, सो डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल दैट वेरी discretely with time between two values of some physical quantity, one value is representing the binary number 0 and the other representing 1. So you can see also here voltage and time, but यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो 0 and 1 की फॉर्म में। जो डाउन वेव है या जो डाउन साइन है दैट इज़ द 0 and upper wave is 1. So it is called digital transmission. आगे हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या है, यानी हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो डेटा ट्रांसमिशन मोड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मोड मीन्स कि जब डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र होता है, सो उसका डायरेक्शन मोड यानी ट्रांसमिशन मोड्स के अंतर्गत हम डेटा फ्लो के डायरेक्शंस को स्टडी करेंगे। और इट इज़ कॉल्ड आल्सो डेटा कम्युनिकेशन और डायरेक्शनल मोड, इसे हम डायरेक्शनल मोड भी बोलते हैं। इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। द डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स based on the direction of exchange of information. So यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 types of data transmission mode given. First is simplex, second is half duplex and third is full duplex. So सबसे पहले हम simplex की बात करते हैं। Simplex data transmission mode क्या है, ये कैसे वर्क करता है। Simplex is the data transmission mode in which the data can flow only in one direction. The communication is unidirectional. In this mode, a sender can only send data but cannot receive it. Similarly, a receiver can only receive data but cannot send it. Means कि डेटा एक साइड से सेंड तो हो सकता है लेकिन उस डेटा का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा सकता है सिंप्लेक्स मोड में। सो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डेटा का जो फ्लो होता है या डायरेक्शन होता है वो वन साइड होता है। अगर सेंडर इसे सेंड करेगा या डिवाइस 1 से इसको सेंड किया जाएगा तो रिसीवर साइड में डिवाइस 2 इसको रिसीव कर सकता है बट इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। यही है सिंप्लेक्स मोड। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। So this transmission mode is not so popular because we cannot perform two-way communication between the sender and receiver in this mode. It is mainly used in the business field as the sales that do not require any corresponding reply. It is similar to a one-way street. और एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा रेडियो। सेकंड
टीवी ट्रांसमिशन। अब देखिए रेडियो हम लोग सुनते हैं तो रेडियो में डेटा ट्रांसमिट होके आ तो जाता है, बट रेडियो के माध्यम से हम रिप्लाई नहीं कर सकते या उसके माध्यम से हम डेटा को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही टीवी ट्रांसमिशन, टीवी पे डेटा ट्रांसमिट हो जाता है बट वी कांट रिस्पॉन्ड। कीबोर्ड, माउस, ये भी एग्जाम्पल हैं, और इन एग्जाम्पल्स ये सारे सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं जिसपे वन साइड डेटा ट्रांसमिट होता है। अब कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। सो इट यूटिलाइजेज द फुल कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। यानी कि एक साइड से जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो पूरी कैपेसिटी के साथ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इट हैज़ द लीस्ट और नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज एज डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब जब एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होना है तो इसके पास कोई डेटा ट्रैफिक नहीं होता है, यानी डेटा ट्रैफिक का कोई इश्यूज नहीं होता है। इजी फॉर्म में डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जैसे कि बताया मैंने, ये यूनी डायरेक्शनल है एंड इन नेचर हैविंग नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस के बीच में कोई इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। There is no mechanism for information to be transmitted back to the sender, no mechanism for acknowledgement। इसमें कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है कि डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में की रेंज में जितने भी डिवाइसेस आएंगे सारे उस डेटा को रिसीव कर सकेंगे। आगे हम दूसरे मोड की बात करते हैं, हाफ डुप्लेक्स। So half duplex is the data transmission mode in which the data can flow in both directions, but in one direction at a time. It is also referred to as semi-duplex. In other words, each station can both transmit and receive the data, but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive, and vice versa. हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा को हम ट्रांसमिट तो करते हैं लेकिन रिसीव भी कर सकते हैं, यानी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेंड करते हैं तो उस टाइम हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, यानी आफ्टर रिसीविंग द डेटा वी कैन रिस्पॉन्डेड देम। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट अ टाइम, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए ये यूजफुल है। मीन्स जब भी डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो एक समय में केवल या तो सेंड किया जा सकता है या फिर रिसीव किया जा सकता है। इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। Next is so half duplex mode. In this type of transmission mode, the entire capacity of the channel can be utilized for each direction. Transmission lines can carry data in both directions, but the data can be sent only in one direction at a time. So this type of data transmission mode can be communicate in both directions at the same time. It can be used for error detection when the sender does not send or the receiver does not receive the data properly. In such cases, the data needs to be transmitted again by the receiver. और अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा। अब वॉकी टॉकी के माध्यम से देखिए, जब एक तरफ से मैसेज सेंड हो जाता है देन दूसरी तरफ से रिसीव होता है। और इंटरनेट ब्राउज़र, आपने इंटरनेट ब्राउज़र्स देखे होंगे। सो जब हम एक तरफ से डेटा या क्वेरी सेंड करते हैं देन आफ्टर हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इट इज़ कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। इसके भी कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस दिए हुए हैं। अगर हम हाफ डुप्लेक्स के एडवांटेजेस की बात करें, सो इट फैसिलिटेट द ऑप्टिमम यूज ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। इट प्रोवाइड्स टू वे कम्युनिकेशन। Following
आर द इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं. द टू वे कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड सिमुल्टेन्यूसली एट द सेम टाइम. डिले इन ट्रांसमिशन में अकर एज ओनली वन वे कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल एट अ टाइम. सो कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया और सेकेंड साइड का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है. इस तरह की प्रॉब्लम्स हाफ डुप्लेक्स में आ जाती हैं. और ये टू वे कम्युनिकेशन है बट सेम टाइम हम कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. अब फाइनली लास्ट हम फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं. फुल डुप्लेक्स मोड, ये सबसे फास्टर मोड होता है डेटा का. फुल डुप्लेक्स इज द डेटा ट्रांसमिशन मोड in which the data can flow in both directions at the same time. It is called also bidirectional in nature. It is two-way communication in which both the stations can transmit and receive the data simultaneously. So इस ट्रांसमिशन मोड में सेंडर कभी भी डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर कभी भी रिसीव कर सकता है, और कभी भी रिसीवर सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है और सेंडर उसको सेंड कर सकता है. इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो फुल डुप्लेक्स मोड. सो फुल डुप्लेक्स मोड हैज़ डबल बैंडविड्थ as compared to the half duplex. The capacity of the channel is divided between the two directions of communication. This mode is used when communication in both directions is required simultaneously. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फुल डुप्लेक्स की, सो इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इन विच बोथ द पर्सन्स कैन टॉक एंड लिसन टू ईच अदर सिमुल्टेन्यूसली. जहाँ टेलीफोन नेटवर्क पे पर्सन आसानी से बात कर सकते एक दूसरे से, सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है फुल डुप्लेक्स मोड में. सो ये टॉपिक था हमारा डेटा ट्रांसमिशन का. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आपने डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के बारे में जाना, डेटा ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में जाना और डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में जाना. इन केस अगर कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क with the help of comment box, so I will provide the solution. Thank you.